welcome to the Arka Khetra Konark. It is befitting that the third National Mines Minister Conference is held at Odisha, one of the richest mineral source states in the country. I am happy to host you all in this important conference, which is the right occasion and may be considered as a precursor to the Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave 2025, due to be held in about a week's time. I am happy that the three states, mainly Odisha, Chhattisgarh and Jharkhand, produced and supply more than 2/3 of all base metals demand of the country, and we are in the eastern part of the country, which has been rightly described as Purvodaya by our Honorable Yashasvi Prime Minister Sri Narendra Modi ji. In order to fulfill the dream of becoming a developed nation by the year 2047, as envisioned by Honorable Prime Minister, these three states will fuel the growth and Odisha will play a major part in this. This platform will provide a deep insight through in-depth discussions how to achieve it and most importantly how to make it sustainable. Let's not forget that natural resources, especially minerals, are finite. It cannot last forever. So we have to find a way how to make it sustainable for a long time without harming the environment. For that, we have to find a way of consumption-led mining activities from the present export-led mining economy. I am sure under the vision and guidance of our Prime Minister, this can be achieved and it will help to build a stronger, more prosperous, Viksit Bharat. I come from a district in Odisha that is truly blessed by nature, surrounded by forests, hills and mountains. Keonjhar nature with abundant mineral reservoirs that have significantly contributed to the progress of both our state and our country. Not only Keonjhar, but every corner of Odisha is rich in valuable mineral resources. Odisha truly is Ratna Garbha, a treasure trove of natural wealth. The contribution of our state to India's economic prosperity is unparalleled, and we take great pride in being a key driver of our nation growth. I just learned that there is a possibility of the much needed and very scarce lithium in one of the districts of Odisha. This is definitely good news for e-battery industry. Odisha is enriched to have almost every type of materials including coal. But unfortunately till now, the true potential of Odisha has not been found because of many other reasons including political will. पिछले 10 वर्षों में देश में कोल और माइन की सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म्स जो जरूरत है सभी रिफॉर्म्स लाया है और भविष्य में स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके जो भी रिफॉर्म्स इस कोल सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स इस माइनिंग सेक्टर में जरूरत है उस पूरा का पूरा रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है। 2015 से पहले कोल एंड माइन सेक्टर में कई प्रॉब्लम्स में थे,
ब्लॉक एलोकेशन में लीगल इश्यूज थे, राज्यों का सही रेवेन्यू नहीं मिल रहा था और लीज रिन्यूअल में भी देरी होता था। लेकिन आज 10 साल में हालत पूरा हम रिफॉर्म्स के कारण बदल दिए हैं। आज कोल और माइंस सेक्टर में देश की अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत क्षेत्र में एक बन गए हैं। एमएमडीआर एक्ट में अमेंडमेंट्स करके ऐसी कई रिफॉर्म्स लाए हैं जिसमें माइनिंग सेक्टर को भारत में तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी भागीदारी होने के बाद माइनिंग सेक्टर को एक नया दिशा आज मिल रही है। एक्शन रिजीम आने के कारण आज माइनिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई है और अब तक लगभग 442 ब्लॉक्स का एक्शन हुए हैं। इन रिफॉर्म्स के कारण आज स्टेट गवर्नमेंट्स को एडिशनल रेवेन्यू भी प्राप्त हो रही है। 2015 से अब तक स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑक्शन प्रीमियम और रॉयल्टी के रूप में आज 2 लाख करोड़ 69,000 का आज रेवेन्यू प्राप्त किया है, जो 2004-2014 के बीच में केवल 55,000 करोड़ का रेवेन्यू था। इसके अलावा माइनिंग एरिया में कम्युनिटीज को वेलफेयर के लिए 2015 में स्थापित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को जमा हो चुका है। आज कोल प्रोडक्शन स्टेट्स में रॉयल्टी के द्वारा लगभग 31,000 करोड़ का रेवेन्यू स्टेट्स में आए हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के द्वारा 23 स्टेट्स को माइनिंग और जियोलॉजी के डिपार्टमेंट को मजबूत बनाने के लिए एनमेट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी भारत सरकार दे रही है। माइनिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए एमएमडीआर के एक्ट में काफी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे कैप्टिव माइंस और मर्चेंट माइंस के डिफरेंस कम किया है, क्लियरेंस ट्रांसफर, मिनरल कंसेशन ट्रांसफर जैसे रिस्ट्रिक्शंस को भी हम हटाए गए हैं। इन सभी रिफॉर्म्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का साथ मिलकर काम करना, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कोऑपरेशन आज आवश्यक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट विषय एक्शन का भी है। मिनरल बैग्स की एक्शन में कई स्टेट्स बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन कुछ स्टेट में एक्शन हो रही है और कुछ स्टेट में जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जीएसआई की रिफॉर्म्स पर स्टेट गवर्नमेंट माइनिंग ब्लॉक्स को तेजी गति से एक्शन करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय है माइंस ऑपरेशन। इस एक्शंस का इकोनॉमिक बेनिफिट तभी होगा जब इन ब्लॉक्स का आज समय पर माइनिंग हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं, इस तेजी से पूरा करने के लिए लैंड एक्विजिशन में भी तेजी से होना है। एनवायरमेंट फॉरेस्ट अप्रूवल भी और लाइसेंसेस मिशन मोड पर एक्सपेडिट करना चाहिए। आज सभी क्लियरेंसेस पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा पूरा स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सिंगल विंडो फैसिलिटीज इंप्लीमेंट करना आज जो गुड गवर्नमेंट के सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट इश्यू क्रिटिकल मिनरल्स, आज हमारे सामने बहुत चैलेंज है। आज भारत क्रिटिकल मिनरल्स पे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर थोड़ा जगह बनाया और क्रिटिकल मिनरल्स पर स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हम सब मिलकर इसमें आज काम करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत जो 2047 का गोल्स, नेट जीरो 27 का कमिटमेंट के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पे आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। भारत में 48 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स का
अभी तक एक्शन का लॉन्च किया गया, उसमें अभी तक 24 ब्लॉक्स का सक्सेसफुली एक्शन का आज अलॉटमेंट हो गया। फिफ्थ ट्रांच में आज आपके सामने ही 15 ब्लॉक्स का लॉन्च अभी अभी किया गया। सभी ट्रांचेस पे इंडस्ट्रीज ने पूरा उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। आने वाले समय में यही मोमेंटम और बरकरार रखना जरूरी भी है। क्रिटिकल मिनरल मिशन भी जल्दी कैबिनेट का अप्रूवल हो जाएगा। अभी आप वीडियो में देखे हैं, लास्ट जो बजट्स के समय पे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर क्रिटिकल मिनरल मिशंस का घोषणा किया है। वो इस तरह ही नहीं है, जो हम क्रिटिकल मिनरल्स का इंपोर्ट करते हैं उसमें पूरा इंपोर्ट ड्यूटी भी 0 कर दिया है। इसीलिए भारत में क्रिटिकल मिनरल की डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग, ओवरसीज एक्विजिशन पर जोर देना हमारा सामने जरूरी है। हमने OMDR एक्ट को अमेंडमेंट्स के लाकर भारत में पहली बार ऑफशोर मिनरल्स का ब्लॉक्स बनाकर एक्शन किया है। 75 इयर्स के बाद पहली बार ऑफशोर में मिनरल एक्सप्लोरेशन किया है। मिनरल का जो माइनिंग करने के लिए आज हम एक्शन भारत सरकार का द्वारा दिया है। मिनरल सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में ये ऑफशोर माइनिंग का एक बड़ा कदम है। माइनिंग की सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑटोमेशन जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करना है। ये हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें दुनिया भर में इन्वेस्टर को अपने माइनिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम मिलकर कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। क्रिटिकल मिनरल्स की स्टेबल सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया है। मुझे आशा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के सहयोग से भारत जल्द ही क्रिटिकल मिनरल सेक्टर को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन में लाने लिए बहुत काम करेंगे। भारत में एक और बड़ी प्रायोरिटी है, वो कोल प्रोडक्शन बढ़ाना, क्योंकि आज भारत में 2040 तक कोल डिमांड बढ़ने वाला है। हमें हर साल 2 बिलियन टन्स की कोल की जरूरत होगी। आज इसे पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की पूरा सहयोग जरूरी है। इसके अलावा कोल एंड माइन सेक्टर में सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के साथ साथ